Harrier XM petrol automatic variant, and the credit of this car goes to Arvind Tata Khandari Agra. For more related videos, subscribe my channel. Let's go. So the car that I am reviewing today in this video is Harrier XM automatic variant, and this one is red color that I am reviewing. So coming to the front profile of the car, at the front you will get LED DRLs, and underneath the LED DRLs you will get projector headlamp setup, and underneath the projector headlamps you will get a fog light. So this is the front view of the car. These are the DRLs and headlights of the car. So low beam for the halogen light and up beam for projector headlamps. This is the front grille. It does not have black glossy grille. It have normal black color grille. There is chrome lining underneath the grille, and at the below the grille you will get some space for the number plate. There is no parking sensor at the front if you are talking about the front. Coming to the side, these are the wipers of the car, which are obviously heavy quality wiper, and as well it does have washer also. So let me show you. So at the roof you will not get power, you will get power antenna in place of shark fin antenna in XM variant, and these are the ORVMs of the car which have turn indicators in it, and the ORVMs are of black glossy finish. Coming to the tire size is 235 by 70 16 inches of tubeless and radial tire. These are not alloy wheels and these are of Apollo tire. So both body color door handle are given in this variant. There is a chrome line over the B pillar as well as over the door of the car. This is the ORVMs having turn indicators in it. So this is the B pillar. As you can see, it does have the chrome lining on above the pillar till the end, and at the last pillar you will get Harrier badging with the chrome finishing. So there are no roof fills given in this car, a power antenna, no sunroof option, no moonroof and no sunroof, panoramic roof. Coming to the rear profile, you will get the fuel tank on the right side of 50 liters capacity, and at the rear you will get LED tail lamps, normal turn indicator, halogen bulb turn indicators at the rear, some kind of black finishing on the line. This is normal just to show. Total 4 parking sensor at the rear, 2 reflectors at the rear. There are no reverse camera that are offered in this variant. So this is all about the rear side. You will get a Harrier capital bold letter badging at the boot. You will get a rear wiper. There is no defogger. You can see Tata bold letter logo at the center. High mount stop lamp, power antenna, no defogger, only rear wiper. This is the rear view of the car. Harrier capital bold letter badging. Let's open the boot of the car and talk about the boot space. The total boot space of this car is 425 liters of boot space. It can be up to, there is no automatic button to close the boot. You have to manually close the boot. This is the interior of the boot, and there is one light which is given in the boot. If you are opening the boot in the night, it will be comfortable for you. So there is some tools for to change the spare wheel. Till now we have not discussed about the engine specification. So coming to the engine specification, it does have 2-liter turbocharged 4-cylinder DOSC engine which produces 167.67 at 3750 rpm of maximum power, and which produces a maximum torque of 350 newton meter in between 1750 to 2500 rpm, and the ex-showroom price of the car is 16.50 lakh rupees. सो फाइनली आई एम इन दिस कार। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे, ये रिमोट है, इसका की है, एक आपको नॉर्मल की मिलेगी और जो सेकंड मिलेगा उसमें रिमोट के अंदर ही आपको की मिलेगी विच हेल्प्स टू अनलॉक, लॉक एंड टू टर्न ऑन द हेडलाइट ऑफ द कार। ये इस तरीके से कुछ मिलेगा आपको। उसके बाद अब पूरे इंटीरियर की हम लोग बात करेंगे। दिस वन इज़ XM मॉडल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कमिंग टू द स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील पर आपको एयरबैग मिलेगा। एयरबैग के साथ ही लेफ्ट साइड में कुछ कंट्रोल्स मिलेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम के, और वॉइस कमांड्स मिलेंगे कॉल एंड और अटेंड करने के लिए। सारे फंक्शंस लेफ्ट साइड में मिलेंगे। राइट साइड में आपको कुछ भी क्रूज़ कंट्रोल का नहीं मिलेगा। X1 XM में आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता है। इधर देखेंगे तो इधर जो आपको मिलेगा वाइपर के लिए मिलेगा। राइट साइड में जो मिलेगा आपको कंट्रोल, ये फ्रंट हेडलाइट सेट करने के लिए मिलेंगे कंट्रोल्स। ये पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक बार इग्निशन ऑन करके देख लेते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम को। सो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसमें पूरा आपको लास्ट तक इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा। XM मॉडल में आपको यहाँ पर ही मिलेगा, और अगर आप जैसे XZ में जाते हैं तो आपको मतलब जो साइज़ होगा इंफोटेनमेंट सिस्टम का वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएगा। उसके साथ ही इसमें आपको फ़ोन कनेक्टिविटी का दे रखा है, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों ही नहीं दे रखा है इसमें। नॉर्मल ब्लूटूथ से आप लिंक कर सकते हैं इसको। टच हल्की सी लैगी लग रही है मेरे को एज़ कम्पेयर टू अदर कार। जैसे मैंने MG की भी ZS EV देखी थी, तो उसमें कंपेरेटिव बहुत ज़्यादा मतलब स्मूथ थी टच उसकी।
ये कुछ डायल्स हैं वॉल्यूम सेट एडजस्ट करने के लिए, ये पावर ऑफ करने के लिए इसको। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं दे रखा है, इसमें नॉर्मल डायल्स हैं एसी को सेट करने के लिए, ब्लोअर की स्पीड सेट करने के लिए। ये कुछ मोड्स हैं कार के, जैसे इको मोड आ चुका है ये, अब इको हट जाएगा यहाँ से एक अगेन प्रेस करने के बाद। ये जो है ये स्पोर्ट मोड है, स्पोर्ट मोड हट गया, देन सिटी मोड आ गया वापस आपका। इसमें जो है आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, इसमें मैनुअल भी आता है, लेकिन द कार दैट आई एम रिव्यूइंग टुडे दिस वन इज़ ऑटोमेटिक वेरिएंट। अब ये यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर स्टीयरिंग व्हील पर नहीं मिलेंगे, लेकिन आप नॉर्मल इसको मैनुअल में एडजस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है। दिस वन इज़ हैंड ब्रेक, जो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन भी था मेरे ख्याल से कि ये क्या चीज़, मतलब अजीब सी तरह की, जैसे लाइक जैसे एरोप्लेन्स में होता है ना, यहाँ आपको स्पेस मिलेगी लेकिन वायरलेस चार्जिंग पैड नहीं है यहाँ पर। एक चार्जिंग फास्ट चार्जिंग के लिए दे रखा है इसमें, नॉर्मल USB चार्जिंग है और ऑक्सिलरी कनेक्ट करने के लिए है। ग्लव बॉक्स देख लेते हैं। इसमें ग्लव बॉक्स में आपको लाइट मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस ग्लव बॉक्स है। वी कैन पुट 2 लीटर बॉटल ईजीली देयर, 2 बॉटल्स ऑफ 1 लीटर एज वेल। सो इंटीरियर में कुछ कह सकते हैं ड्यूअल टोन में इंटीरियर मिलेगा। ये हार्ड प्लास्टिक है, सॉफ्ट प्लास्टिक आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। अगेन जो हैंडरेस्ट है यहाँ पर आपको कवर मिलेगा कुछ, जो कि सॉफ्ट प्लास्टिक में। ये 2 कप होल्डर्स, इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं हैंडरेस्ट को। ये हैंडरेस्ट है, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का पावर चार्जिंग सॉकेट मिलेगा। ये रहा, ये कुछ AC के लिए। यहाँ पर अगेन USB चार्जिंग सॉकेट भी है। सो ये तो रहा इसका। अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन कर लेते हैं एक बार। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हो चुका है। इसमें सिटी, इको, स्पोर्ट्स तीनों ही मोड मेंशन्ड है। बीच में आपको इंडिकेट कर रहा है पार्किंग में कार का, जो राइट एंड लेफ्ट दोनों में एनालॉग मिलेगा, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो बीच में है चेंज XM में नहीं कर सकते। बट इफ विल टॉक अबाउट द XT और XZ मॉडल, वी कैन चेंज द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ द कार एज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो ये डिफरेंट मतलब कंडीशंस बता रहा है हमारे को कार की, किस मोड में कार है, एवरेज कितना, फ्यूल इकोनॉमी और ट्रिप, और मतलब जो नॉर्मल होता है क्लॉक के साथ, ये सब मेंशन कर रखा है इसमें। सो ये था। अब यहाँ देख लेते हैं सनवाइजर्स हैं। सनवाइजर्स में आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, लेकिन लेफ्ट, अच्छा ठीक है सॉरी, लेफ्ट में भी इसमें वैनिटी मिरर नहीं है। सनग्लास होल्डर है शायद, ये सनग्लास होल्डर है। LED रीडिंग लैम्प्स, 2 माइक, ये जस्ट टू शो। IRVM इसमें जो है वो ऑटो डिमिंग IRVM नहीं दे रखा है, इसमें नॉर्मल IRVM है। और ये था पूरा इस कार का फ्रंट व्यू। नाउ विल गो टू द बैक साइड ऑफ द कार एंड वहाँ पर देखते हैं स्पेस कितनी। अगर सीट कंफर्टेबल की बात करिए तो फ्रंट में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं एंड स्पेस, बहुत ही ज़्यादा स्पेस दे रखी है। एक बार स्टीयरिंग व्हील देख लेते हैं। इसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, इसमें दोनों टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, देखिए टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट दोनों ही तरह से एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिलेगा आपको इसमें। XM में भी मिलेगा वो चीज़। राइट साइड में जो कुछ कंट्रोल्स दे रखे हैं, ये कंट्रोल्स आपको साइड मिरर सेट करने के लिए, अगर आप प्रेस कर देंगे तो साइड मिरर दोनों फोल्ड हो जाएंगे, वापस रिट्रैक्ट हो जाएंगे। सो लेट्स कम टू द रियर साइड, बट बिफोर कमिंग टू द रियर साइड लेट मी टेल यू अबाउट द राइट डोर हैंडल ऑफ द कार। सो राइट डोर हैंडल पर आपको कुछ बटन्स मिलेंगे, जस्ट टू अनलॉक द विंडो, टू लॉक ऑल द 4 विंडोज। दिस इज़ द हैंडल, जो कि बहुत हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ हैंडल है। यहाँ पर 1 लीटर बॉटल स्पेस, ये स्पीकर, नीचे साइड में स्पीकर। यहाँ पर आपको पैडल्स मिलेंगे विथ अ फुट रेस्ट एट द लेफ्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रंट। नाउ लेट्स गो टू द बैक साइड ऑफ द कार। सो कमिंग टू द रियर साइड, रियर में स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस है, कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा। आई एम 6 फीट टॉल एंड आप हाइट देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच रही है। यहाँ पर हैंडल मिलेगा आपको, ये वही नॉर्मल डोर हैंडल जैसा आ गया, सेम विंडो को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए बटन्स मिलेंगे। बीच में आपको जो कप होल्डर्स या फिर हैंडरेस्ट मिलता है वो कुछ भी नहीं मिलेगा। रियर में रीडिंग लैम्प्स, जो कि LED रीडिंग लैम्प्स है। AC वेंट्स रियर में नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर कुछ फ़ोन या आप अपना कुछ सामान रख सकते हैं, फ़ोन रखने के लिए वैसे स्पेस है मेन। जो सीट्स हैं ये 40-60 के रेशियो में नहीं स्प्लिट होती है, नो नॉर्मल जो पूरी सीट होती है एक साथ वही टाइप की सीट्स दे रखी हैं इसमें। और अगर नीचे थाई सपोर्ट की बात है तो थाई सपोर्ट भी मोर देन सफिशिएंट है, जैसा SUV में हम एक्सपेक्ट करते हैं। एक प्रॉपरली इजीली हम यहाँ पर 3 लोग आ सकते हैं बहुत ही कंफर्टेबल हो करके। सो ये था इस कार का पूरा पीछे का व्यू। Guys, if you like this video, don't forget to subscribe my channel for such videos, because I'll bring you the latest updates in automobile industry. Thank you guys for watching this video. Hope you like this. Don't forget to give a thumbs up.